हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन रिफर्ड टू एज, सो डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोला जाता है। वी कॉल्ड इट एज इंटरनेट मार्केटिंग टू एंड एज वेब मार्केटिंग ऑल्सो। सो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सो वी गो विद ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दैट। Next question. Which of the following is not a traditional form of digital marketing? So radio, TV, billboard, तीनों ही ऑप्शन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंडर नहीं आते हैं. So the correct option will be option D, all of the above. Next question. How many pillars of digital marketing do we have? So we have all two pillars. That means mainly we have two pillars of digital marketing. Okay. डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इंक्लूड करती है बहुत वॉइस ब्रॉडकास्ट एंड पॉडकास्टिंग. सो वी गो विद ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the percentage of customer who visit our website and actually buy something home? कि वो percentage of customer को क्या बोला जाता है जहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे लोग उसको विजिट भी कर रहे हैं और एक्चुअली बाय भी कर रहे हैं. सो दैट टर्म इज नोन एज कन्वर्जन रेट. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the process in which marketing is achieved by incorporating tools, techniques, electronic devices, technologies or systems? So उस प्रोसेस का क्या नाम होता है जहाँ पे मार्केटिंग को अचीव करने के लिए आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, लाइक इनकॉर्पोरेटिंग टूल्स, टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब. So we call that process as interactive marketing. That is option D. Next question. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम सर्च इंजन डोंट वांट? तो सर्च इंजन को क्या नहीं चाहिए होता? कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं चाहिए होता, बाइंग लिंक्स और वी कॉल इट एज परचेज्ड लिंक्स, इसकी भी नीड नहीं होती है. और पुअर यूजर एक्सपीरियंस, इसको भी नहीं चाहिए सर्च इंजन को. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the correct depiction of optimization strategy? तो correct depiction क्या होता है optimization strategy का? So वो क्या होता है? Orange head technique. That is option A. Next question. Which of the following is the correct name for Facebook ranking algorithm? Facebook ranking algorithm के लिए correct name क्या होता है? So जो edge rank है वो correct name होता है Facebook ranking algorithm के लिए. So option D will be the right answer. Next question. For SEO site content should have. SEO site के लिए content कैसा होना चाहिए? उसके पास meta description भी होना चाहिए और title text भी होनी चाहिए. So option C is correct answer, both A and B. Next question. Which of the following are essentially required to make a business case for content marketing? कि content marketing बनाते वक्त business case को किन चीज़ों की essentially requirement होती है? So it needs industry best practices, कि इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अपनाई जाती हैं, एसेंशियल होती हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड KPIs also, and impacts and challenges we should know, right? So all three are essentially required to make a business case for content marketing. So we go with option D, all of the above. Next question. In the email campaign, Dash delivers the advertisement into the group of targeted customer. कि इस email campaign में जो advertisement deliver होता है किसी targeted group of customers को deliver होता है. So what we call that email campaign as direct email marketing. So direct email marketing में क्या होता है? एडवर्टीजमेंट डिलीवर करते हैं किसी टारगेट कस्टमर्स को और उनके ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को. So option C will be the right answer here, direct email marketing. Next question. Which of the following is the most common delivery channel in terms of mobile marketing? So mobile marketing में most common delivery channel क्या होता है? As we all know, that is text. So option B is the right answer. Next question. In order to access the maximum revenue generated by an ad on the app,
Which of the following matrices is chosen by the developer? So अगर डेवलपर को अपनी ऐप के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है ऐड के थ्रू, तो वो कौन सा मैट्रिक्स फॉलो करेगा? He will follow actually ECPA. So what is ECPA? ECPA refers to Electronic Communication Privacy Act. So ECPA is what? ECPA में क्या होता है एक्चुअली, मतलब कि जो कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट होता है वो सब इसके अंडर आते हैं एंड इट विल हेल्प डेवलपर टू generate the maximum revenue for on his app for the ads. Okay, so option C is the right answer, ECPA. Next question, which of the following formulas is used by pay per click? So, जो pay per click है वो एडवर्टाइज, उसमें ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एड क्लिक्स, कि कितनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एड्स क्लिक से. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पे पर क्लिक, दैट इज ऑप्शन सी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एड्स क्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजर सेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द, तो जो यूजर सेशन है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो किन जिस चीज़ से? बाय ऑथेंटिकेट यूजर, अगर यूजर खुद ही ऑथेंटिकेटेड है तो उसका यूजर सेशन पहले से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा. वी कैन आइडेंटिफाई इट विद IP एड्रेस एज वेल एंड यूजर एजेंट ऑल्सो. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, Google Analytics can never recognize returning user on mobile app. जो Google Analytics है वो कभी भी recognize नहीं कर सकता returning users को मोबाइल ऐप के लिए. So it is a false, statement, because जो Google Analytics है वो recognize कर सकता है returning users को मोबाइल ऐप्स में भी. और this question also came as like Google Analytics can analyze returning users for a website but not for mobile apps. So the answer will remain same, that is false, because वो जो Google Analytics है वो रिटर्निंग यूजर वेबसाइट के लिए भी रिकग्नाइज कर सकता है और मोबाइल ऐप्स के लिए भी रिकग्नाइज कर सकता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपरलिंक रिफर्स टू अ, सो जो हाइपरलिंक रिफर करते हैं वो इनबाउंड लिंक को रिफर करते हैं. तो हाइपरलिंक होते क्या हैं एक्चुअली? जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो किसी लिंक के थ्रू, दोज लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरलिंक और वी सिंपली कॉल देम एज लिंक also. So here option A is the right answer, inbound link. Next question, a photo, graphic or image that represent you across blogs. So कोई इमेज, ग्राफिक जो आपको आपके ब्लॉग्स के क्लोज रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एन एविटर, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक एनालिटिकल पैकेज? सो फेसबुक एनालिटिकल पैकेज का क्या नाम होता है? वी कॉल्ड इट एज इनसाइट्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि फेसबुक को एनालाइज करता है. ओके, ये पैकेज जो है फेसबुक एनालिटिकल पैकेज क्या करता है? फेसबुक को एनालाइज करता है और उसका क्या नाम है? इसका नाम है इनसाइट्स, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी यूज कीवर्ड्स? हम कहाँ पे यूज करते हैं कीवर्ड्स का? टैग्स में भी यूज करते हैं, टाइटल में भी यूज किया जाता है एंड डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, all of the above. Next question, a portal which is an online platform operated by a third party and is open to buyers or sellers in a particular industry. So वो पोर्टल जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ओपन होता है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए किसी पर्टिकुलरली इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है ये. सो व्हाट वी कॉल्ड इट एज? We called it as B2B independent e-marketplace. B2B refers to business to business independent e-marketplace. So option D is the correct answer here. Next question. Or one aim of e-procurement is to increase saving by bulk
बाइंग ऑफ आइटम्स। जो ई प्रिक्योरमेंट होता है उसका एक एम होता है कि वो सेविंग्स को इंक्रीज कर दे, किससे? बाय बाइंग बल्क ऑफ आइटम्स ऑफ द राइट क्वांटिटी। ओके, so option we have that in option A. So right answer will be option A, that is of the right quantity. Procurement क्या होता है? Procurement होता है प्रोसेस जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हो, बाय करते हो, ऑब्टेन करते हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोक्योरमेंट? सो यहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोक्योरमेंट कौन सा होता है? इट इज रॉ मटेरियल, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केम अंडर ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? ईमेल न्यूज़लेटर, लीड नर्चरिंग और डाइजेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। सो तीनों ही ईमेल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important metric to track email marketing? So email marketing को track करने के लिए सबसे important metric कौन सा होता है? CTR होता है, open rate होता है, click rate होता है, और it is all of the above. So it is click rate, which is most important metric to track email marketing. Option C is the right answer. Next question, in which type of email campaign advertisement are sent to target group of customer? कहाँ पे टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर को ईमेल कैंपेन की जाती है एडवर्टाइजमेंट के लिए? सो लाइक we called it as spamming. Okay, option C. Next question, social networks are organized primarily around. तो जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो किसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, इसके अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं? सो इट ऑर्गेनाइज अराउंड पीपल primarily. So option B is the right answer, that is people. Next question, the act of collecting, organizing and sharing content is known. So the process of collecting things, organizing them and sharing this content, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को, act को curation, that is option B. Next question, the most common user identification technique is via session, cookies, segmentation or page reviews. So cookies is the most common user identification technique that we have today. So option B is the right answer. That means it is commonly practiced. We have many identification techniques, but cookies is actually what practiced in major. Next question, the redirection of traffic from a legitimate site to an infringing site is called. एक legitimate site से infringing site पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना क्या बोला जाता है? साइबर स्क्वैटिंग, साइबर पायरेसी, मेटा टैगिंग और कीवर्डिंग से भी कॉल्ड इट एज साइबर पायरेसी, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the focus of web analytics is to understand the user of a site, user behavior, user activities or all of them. तो जो वेब एनालिटिक्स है उसका मेन फोकस क्या होता है? उसका मेन फोकस होता है तीनों को ही समझना कि यूज़र का बिहेवियर क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, और यूज़र ऑफ द साइट मतलब वो किस मेनली किन किन साइट्स को यूज़ करता है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ई कॉमर्स वॉज. जो प्राइमरी सोर्स होता है फाइनेंसिंग अर्ली ईयर्स ऑफ ई कॉमर्स, उसको क्या बोलते हैं? बैंक लोन बोलते हैं, लार्ज रिटेल फर्म्स बोलते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स बोलते हैं, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं. सो उसको बोला जाता है वेंचर कैपिटल फंड्स, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ सर्वर दैट अलाउज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर. कि वो प्रोग्राम जिसमें स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, बिटवीन अ ब्राउज़र और जो आपका प्रोग्राम रन कर रहा है सर्वर पे, तो क्या आपको अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए सर्वर पे.
तो उसको क्या बोला जाता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस बोला जाता है, दैट इज ऑप्शन सी, CGI is the short form for this. Next question. So here are some abbreviation which you should remember. CMS is for content management system. तो CMS का जो एब्रिविएशन है वो यूज़ किया जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. SEO stands for Search Engine Optimization. PA for Page Authority. DA for Domain Authority. PR is for page rank, and ROI is for return on investment. So ROI को बोला जाता है return on investment. LBS किसके लिए stand करता है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए. LPS is लोकेशन बेस्ड सर्विसेज. FIFO की फुल फॉर्म क्या होती है, FIFO stands for highest paid persons of India. ओके. सर्व किसके लिए स्टैंड करता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज. So SERP full form is Search Engine Result Page. PPC is pay per click. Okay. And URL is a Uniform Resource Locator. FFA is for free for all links. And CRO is for conversion rate optimization. Okay. So these all are important abbreviation. You should remember these all of them for the exam. Next question we have. द सीक्वेंस ऑफ अ सेल प्रोसेसिंग. जो सीक्वेंस होता है सेल्स प्रोसेस का वो क्या होता है, लीड जनरेशन, कॉल, प्रेजेंटेशन एंड सेल. दैट इज ऑप्शन ए. So this it is a sequence of sales process. It is lead generation, then call, then presentation, and then sale. So this is it for now. Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel if you like this video. Thank you.